हेलो एस्पिरेंट्स। तो कैसे हो सब? तो चलिए आज की ताज़ा खबरें देखते हैं। तो आज है 31 दिसंबर। पता रहेगा आपको क्या रहता है आज। तो फिर तो आप फुल मज़े करते रहोगे। नहीं, प्लान रहेंगे, कॉन्सर्ट्स रहेंगे। चलिए अच्छा है। चलिए हम मेन पिच पे आते हैं। पहला एक्सप्लेन द इंडियंस एंड द H1B वीजा। चलिए देखते हैं ये क्या है। पार्कर प्रोब गेट्स क्लोजेस्ट एवर टू द सन, व्हाई दिस मैटर्स। ये सबसे नजदीक ही गया है पार्कर सोलर प्रोब। चलिए इसके बारे में देखेंगे कि ये है क्या। नाम में ही है। लेजेंड ऑफ बसिलो पिटा, ग्रीक न्यू ईयर्स केक दैट ब्रिंग्स लक। पता नहीं एडिटोरियल किधर गया। एडिटोरियल नहीं आया आज का। इसमें एडिटोरियल ही नहीं दिया, वाह। क्या ऊपर नीचे किया है इन्होंने। चलिए एक्सप्लेन ही दिया सीधा। उसके बाद कोई एडिटोरियल पेज नहीं दिया है। हाँ है, इधर दिया है। चलिए देखते हैं क्या क्या है। बीपीएससी पर काफी ज्यादा चल रहा है अभी प्रोटेस्ट। देखते हैं अभी क्या करते हैं। बीपीएससी मतलब बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है। That is the beauty of sports. Sometimes you laugh, sometimes you cry. In the name of democracy, disenchantment of voters might be the most formidable challenge to it. Disenchantment of voters might be the most formidable challenge to it. ठीक है, देखेंगे इसको। Migrants are US. America cannot become great without them, including those which on H1B visas. It needs their energy, enterprise and innovation. ठीक है। Volatile year, Indian stock markets scaled new highs in 2024, but sentiment soared. Trump central banks and budget will shape 2025. Zig and Zag, Vinish Phogat, 2024 and the Stories of Truth. Books provide shelter, they were a lament, sigh, negative, नहीं. Breaking through gently as Prime Minister Manmohan Singh quietly navigates, नहीं. Culture versus merit, H1B visas crisis in the US reveals the टेंस रिलेशनशिप। ठीक है, H1B वीजा के ऊपर काफी ज्यादा चर्चा चल रही है। तो अभी हम उस पर दो तीन आर्टिकल आए हैं। तो हम पहले H1B वीजा करेंगे, फिर ये करेंगे। चलिए, व्हाट इज द H1B वीजा प्रोग्राम इन द यूनाइटेड स्टेट्स? Why has there been a public row among supporters of Donald Trump regarding the program, and what are some of its major criticism? अभी ये है क्या, क्या चल रहा है इसमें, और ये क्या पिटिशंस लगा रही है। बर्थ कंट्री ऑफ सक्सेसफुल पिटिशनर्स, देखते हैं अभी। Weeks before he returns as US President, Donald Trump supporters are locked in a public row about skilled immigration and H1B visas. The infighting was triggered by the appointment of Chennai Bunch Sriram Krishnan as Trump's top AI advisor earlier this month, after which a post by Krishnan on X in November, which had called for unlocking skilled immigration, went viral on social media, inviting the ire of many in Trump's staunchly anti-immigration base. The outrage of MAGA crowd, most vocal supporters of Trump's "Make America Great Again" slogan, was directed specifically towards the H-1B visa program, which allows American business to employ skilled foreign nationals and which has been a highly desired pathway of Indians to migrate the US. देखो, अभी प्रॉब्लम क्या चल रहा है कि अभी आ गए हैं ट्रम्प। ट्रम्प क्या करते हैं, तो वो मेजरली प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी करते हैं। मतलब क्या, तो वो पूरा जो क्रेडिट देते हैं अपने ही लोगों को। मतलब अपने लोगों ने ही सब कुछ करना चाहिए, बाहर के कोई चाहिए नहीं उनको। काइंड ऑफ राज ठाकरे बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब वो अभी ये नेशन के अंदर कर रहे हैं, ये कंट्री वाइज कर रहे हैं। एक तरफ से सही भी है, गलत भी है। अभी कितना सही है कितना गलत है अभी वो उनको ही पता है। पर मेजरली इसका फर्क हमें पड़ेगा, क्योंकि हम जो है, हमारा जो स्किल्ड मैन फोर्स है पूरा एकदम क्रीम वाला, तो वो जाता है पूरा यूएस में। और ये बोल रहे कि भाई अभी हमारे को जरूरत नहीं पड़ने वाली है आगे जाके। तो इसके ऊपर ही सब क्रिटिसिज्म चल रहा है अभी। However, was met with strong pushback from within the Trump camp, including from the likes of Elon Musk and Vivek Ramaswamy, the two chairs of the proposed Department of Government agency in the incoming administration. Here is a brief overview of the controversy that has divided American right and the H1B program as at its heart. देखते हैं अभी क्या चल रहा है इसमें।
Immigration discourse in US. Immigration is one of the most polarizing political issues in the US. According to a YouGov poll from October, 14.6% registered voters felt it was the most important issue in the upcoming election. दिस नंबर वॉज ओनली 2.1% इन 2012। देखो पहले तो कुछ इतना खास इतना फर्क नहीं पड़ रहा था 2012 में, 2% ही लोग ऐसे बोल रहे थे कि भाई हाँ ये करना चाहिए। पर अभी अक्टूबर के जो इलेक्शंस हुए, 14% रजिस्टर्ड वोटर्स ने ऐसा लगा कि भाई ये इंपॉर्टेंट इशू है। मच ऑफ द इलेक्शन टाइम एंटी इमिग्रेशन रेटोरिक फोकस्ड ऑन लो स्किल्ड लेबर माइग्रेशन। Besides the intrinsic racism, this rhetoric is fueled by the belief that such immigration depresses wages and takes away jobs that would have otherwise gone to the American working class। अभी ये क्या बोल रहे, जो भी लोअर स्किल्ड लेबर रहते वो माइग्रेट जो करते यहाँ पर, तो वो क्या कर रहे हैं, हमारे जॉब्स ले रहे, क्योंकि जो अमेरिकन वर्किंग क्लास को मिलना चाहिए वो अभी मिल रहे, लोस बाकी के जो भी माइग्रेंट सारे उनको मिल रहे। उससे क्या होता है, फिर हाई एम्प्लॉयमेंट होता है, लो वेजेस होते हैं, इन्फ्लेशन आता है, हाउसिंग क्राइसिस आते हैं और अदर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी आते हैं। Trump has successfully cashed in on such sentiments, promising to make conditions better for the average working class American by curbing immigration। तो ये क्या बोल रहे हैं भाई, हम आने ही नहीं देंगे उनको। The current controversy involves many of the same themes as Trump's Mexicans are stealing American jobs rhetoric। अभी देखो वो ये क्या बोल रहे हैं, जो नेबरिंग इनका है मेक्सिको, तो वो बोल रहे हैं कि वो हमारा जॉब ले रहे हैं, क्योंकि मैक्सिकन जो है ज़्यादातर तो उधर ही माइग्रेट कर रहे हैं। Only this time in the context of immigration onto into the US of skilled persons for higher paying jobs। अभी देखते हैं। अभी वीजा फॉर स्किल्ड माइग्रेंट्स, अभी स्किल्ड माइग्रेंट्स का रिगार्डिंग क्या चल रहा है अभी। अभी जो वीजा रहता है ना स्किल्ड माइग्रेंट्स के लिए, उसको बोला जाता है H1B वीजा। ठीक है, ये अलाउ करता है अमेरिकन एम्प्लॉयर को, वो हायर कर सकते हैं इमिग्रेंट वर्कर इन ऑक्यूपेशन दैट रिक्वायर हाई लेवल ऑफ स्किल। तो वो एक अमेरिकन एम्प्लॉयर वो एक हाई लेवल ऑफ स्किल वाले को हायर कर सकते हैं, इमिग्रेंट वर्कर को हायर कर सकते हैं, और एटलीस्ट बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए according to US Department of Labor। The program started in 1990 with the intention of helping employers who cannot otherwise obtain needed business skills and abilities from the US workforce by authorizing the temporary employment of qualified individuals who are not otherwise authorized to work in the United States। तो ये ऑब्वियसली बात, ये इनिशिएटिव क्यों लिया गया था, 1990 से स्टार्ट किया गया था वैसे। एक्चुअली ये इंटेंशन था कि भाई हेल्प हो जाए, जो एम्प्लॉयर्स है वो खुद होके इतना बिजनेस जो स्किल्स है उतने तो नहीं रहते, उतने एबिलिटीज नहीं रहते, तो वर्कफोर्स उनको बढ़ाने के लिए ये क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स वो कर सकते थे। एन H1B वीजा कैन बी इशूड फॉर मैक्सिमम 6 years एट अ स्ट्रेच। एक टाइम पे वो 6 साल के लिए ले सकते वीजा। आफ्टर विच द वीजा होल्डर हैज टू आइदर लीव द US फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 12 months बिफोर रिटर्निंग और अप्लाई फॉर रिसीव परमानेंट रेसिडेंस। देखो उसके बाद आइदर वो US को छोड़ सकते हैं, या फिर वो 12 महीने के लिए बिफोर रिटर्निंग अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 12 months बिफोर रिटर्निंग, मतलब वो 12 महीनों के लिए तो एटलीस्ट यूएस को छोड़ना चाहिए, या फिर उसने अप्लाई करना चाहिए ग्रीन कार्ड के लिए। ग्रीन कार्ड का मतलब क्या, काइंड ऑफ परमानेंट रेसिडेंस, परमानेंटली वो उधर ही रहना चाहिए। करंटली देर इज एन एनुअल न्यूमेरिकल लिमिट रेगुलर कैप ऑफ 65,000 न्यू स्टेटसेस visas under this program each fiscal year, with an extra 20,000 visas available to those with a master's degree or higher from a यूएस यूनिवर्सिटी। तो इन्होंने क्या बोला है अभी, ऑन एन एवरेज कितना होना चाहिए एक ईयर में, तो एक ईयर में ऑलमोस्ट 65,000 आ सकते हैं आपको लिमिट में, और एक एक्स्ट्रा 20,000 दिया है जिसका मास्टर्स डिग्री या फिर जो हायर डिग्रीज है उनके लिए, जो यूएस से लिए। However, not all H1B petitions are subject to annual cap. The number of petitions approved by the United States Citizenship and Immigration Services, a part of the US Department of Homeland Security, is thus far higher than annual cap। देखो अभी कितने पिटिशंस आ रहे हैं अप्रूव किए गए हैं यूएस ने, तो देखो इधर रेड किधर क्या है, हाँ रेड है चाइना के, देखो ये चाइना का है। इंडिया का देखो ब्लू में है, 2,80,000 के आसपास जा रहे हैं हम। और टोटल अप्रूव्ड कितने हैं, 3,86,000 इधर, इतने में अगर ये दोनों को कंबाइन किया तो 3,88,000 वगैरह इतने अप्रूव कर रही है। Notably, petitions for continuing employment do not fall under the cap. In the fiscal year 2023, for instance, UC has approved 1,18,000 petitions for initial employment and 2,67,000 petitions for continuing employment. Those seeking employment at higher education institutions or non-profit entities affiliated to such institutions, non-profit research organizations और गवर्नमेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन are also eligible to exempted from the cap। अभी कौन कौन एग्जामेशन है वो दिया है, और अभी कॉन्टर्स ऑफ H1B डिबेट देखते हैं अभी क्या चल रहा है।
People born in India are the largest beneficiaries of the H-1B program. Data from the US government shows that Indians account more than 70% of all H-1B petitions approved each year. देखो 70%, 70% से भी ज्यादा हमारे इंडियन से, मतलब कितना ब्रेन ड्रेन हो रहा है देख सकते हो आप। जैसे इधर फैसिलिटीज भी वैसे होनी चाहिए तभी जाके ब्रेन ड्रेन होगा, कोई ऐसे ही नहीं जाएगा ना। पीपल born in China come a distant second, hovering at the 12 to 13% मार्क, मतलब इसके हमारे इंडिया के बाद चाइना आता है 12 से 13%, वो भी बहुत कम है वैसे। देख सकते हो, हमने देखा है कितना कम है हमारा, देखो। इट इज दिस डोमिनेंस ऑफ इंडियंस दैट seems to have caught the attention of nativists MAGA, मतलब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन है। Republicans who have extended the logic they apply while arguing against low-skilled labor migration by Mexicans and Central Americans to Indians coming to the US to work in the tech industry। अभी वही अप्लाई कर रहे हैं। देखो कोई लॉजिक तो है नहीं कि वो बोल रहे कि भाई जो लो स्किल है वो भी आ रहे हैं, जो हाई स्किल है वो भी आ रहे हैं, तो हमारे पास बचा ही क्या ना। Central to this argument is the claim that H-1B program meant to attract top talent from around the world to the US is misused by tech corporations to staff their low to mid-level workforce for much lesser pay than what Americans would demand. When someone like Musk argues in favor of H-1B visa, saying there is a permanent shortage of excellent engineering talent, critics respond that the problem is not the dearth of American talent, but the fact that tech companies see it as too expensive to hire। देखो जो मस्क जी है वो क्या बोल रहे हैं, इलॉन मस्क, वो फेवर में है H-1B वीजा कि भाई देना चाहिए। अभी ये क्या बोल रहे हैं, आप क्यों इतना फेवर में जा रहे हो। तो वो ये बोल रहे हैं कि भाई परमानेंट शॉर्टेज रहेगा हमारे इंजीनियरिंग टैलेंट के लिए, तो इसलिए हमको ये H-1B वीजा फेवर करना चाहिए। पर अमेरिका वाले क्या बोल रहे हैं आपको टैलेंट की कमी नहीं है, आपको एक्सपेंसिव लगेगा। अगर कोई अमेरिकन हायर करते हो आप, तो आपको उसको अच्छे खासी अमाउंट देनी पड़ेगी। अगर वही चीज़ अगर बाहर से आपको, प्लस आपको अच्छे स्किल भी मिल रहे हैं और उसको कम पैसों में भी चल रहा है, तो क्यों नहीं, है ना। लो, क्या बोलते हैं, वर्कफोर्स जो है आपका कम काम पैसों में काम कर रहे हैं तो बेस्ट ही है। There is some truth to this claim. Nearly 70% of H-1B petitions approved for Indian professionals in US fiscal year 2023 were for salaries below 1 lakh per annum. An analysis of data on 60,000 approvals from UCIS obtained by Bloomberg showed, for context, the median salary of for IT professional in the United States is 1,04,420 इन 420 ही है क्या? इन मई 2023। देखो एक एवरेज आईटी प्रोफेशनल का कितना सैलरी, देखो 1,04,420, ये डॉलर है। अगर डॉलर्स की बात की जाए तो ऑलमोस्ट ये जाता है 80 लाख के आसपास, ठीक है। 80 लाख कमा रहे हैं, अगर हमारे इंडियंस के लिए बात की जाए तो 80 लाख बहुत होते हैं। बाय द वे आपको पता रहेगा 80 लाख कितने रहते हैं, ये सैलरी है बाय द वे। अराउंड 25% ऑफ पिटिशन अप्रूवल्स फॉर सैलरीज बिटवीन 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में। अभी 25% जो थे 1 लाख से 1.5 लाख डॉलर की बात, अभी इसके ऊपर जा रहा है फिर। 80 लाख से अभी देखो आप काउंट कर लो, करोड़ के ऊपर जा रहा है। ओनली 5% और सैलरीज अबाउट 1.5 लाख, बस 5% लोग हैं जो 1.5 लाख से भी ऊपर सैलरी खींच रहे हैं, जैसे गूगल के वगैरह हो गए। वो तो आई गेस कितना है उनका, आई गेस 350 से 450 करोड़ ले रहे हो साल का। अंदाजा लगाओ कितना होता है फिर। ऑन संडे आफ्टर कमिंग आउट इन सपोर्ट ऑफ H-1B visas, Musk said the program is broken and needs major reform, easily fixed and by raising the minimum salary significantly and adding a yearly cost for maintaining the H-1B, making it materially more expensive to hire from overseas than domestically, Musk said in a post on X। अभी आप, अभी मस्क बोल रहे हैं कि भाई ये प्रोग्राम है ना तो थोड़ा सा टूटा हुआ है और उसमें मेजर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। ये इजीली फिक्स किया जा सकता है अगर आपने मिनिमम सैलरी एक फिक्स कर दी और एक ईयरली कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग रख दिया H-1B वीज़ा का, तो वो हो जाएगा, क्योंकि हम इसका मेंटेन करने के लिए ही बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहा है। अगर हम बाहर से कोई डोमेस्टिकली ओवरसीज से ले रहे तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, अगर डोमेस्टिकली लेंगे तो फिर और भी खर्चा कम हो जाएगा। That said, industry insiders maintain that H-1B visas are critical to bridging the skill gap in the US and the wages are market driven. Chinese and Indians dominate the STEM fields worldwide. According to the data presented by the Center for Security and Emerging Technologies in 2020, China and India boast the highest number of STEM graduates in the world, significantly more than US। अगर बात की जाए तो हमारे ग्रेजुएट्स की भी संख्या देख लो, 2.5 मिलियन से ज़्यादा है, और इधर 3.5 मिलियन है चाइना की, और इधर बस ये 8 मिलियन के आसपास ही जा रहे हैं। तो ठीक है, सॉरी 82, 8 मिलियन नहीं है, ये कम है।
नहीं नहीं नहीं, ज़्यादा ही है, बरोबर है। यूएस के ज़्यादा रह के भी हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे बोल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं अभी, हर एक कंट्री के अलग समस्या है, सही भी हो सकते हैं गलत भी हो सकते हैं। वैसे इंडियंस के लिए ये शौक रहेगा, तो थोड़ा अभी इंडियंस की तरफ देख लीजिए, अगर इंडिया की तरफ देखिए, इंडिया को बेहतर बनाइए, ब्रेन ड्रेन मत करिएगा थोड़े पैसे के चक्कर में। थोड़े नहीं, बहुत ज़्यादा पैसे, पैसा ही सब कुछ नहीं है, आपको पता चल जाएगा जब बाहर जाओगे। मेरे काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स हैं जो यूएसए में है, और बाद में एक टर्म के बाद वो सीधा इधर ही आते हैं, क्योंकि बस वो एक्सटेंसिव कैपिटलिस्ट माइंडसेट है उनका, बस वो प्रॉफिट देखेंगे, बाकी वो अपने जैसा भाईचारा वैसा आपको किधर ही नहीं मिलेगा। जो बाहर से रह के आए उनको पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। इसकी वैल्यू बाहर जाके समझेगी, इधर इधर कुछ भी नहीं समझता है। हमें हमें लगता है बस यूएसए रोजी पिक्चर आता है पूरा एकदम मस्त मस्त है। आपने ये तो देखा रहेगा ना डंकी, तो वैसा ही हाल है सभी का, काइंड ऑफ मोर और लेस, पूरा नहीं छोड़ देते। बहुत सारे लोग अमेजोन में गए हैं, फेसबुक में गए, गूगल में, गूगल भी ठीक ठाक है चलो, पर जो अमेजोन में गए ना, वो उनका पैकेज ऑलमोस्ट 1 करोड़, एक एक महीने का सैलरी उनके पास, मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, 1 करोड़। पर इतना फ्रस्ट्रेट होते हैं ना वो, क्योंकि उतना टारगेटिंग भी देते हैं ना, आपको इतना पैसा दे रहे तो फिर ऑब्वियस सी बात है। तो वही अगर स्किल थोड़े कम पैसे मिलेंगे पर आप खुश रहोगे, वो मैटर करता है। पार्कर प्रोब गेट्स क्लोजेस्ट एवर टू द सन, हाँ अगर इधर रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है तो फिर अलग बात है। NASA scientists announced on Friday that Parker Solar Probe had survived the closest ever approach to the Sun. The surface was operating normally after it passed 6.1 million kilometers from the solar surface. We are 93 million miles away from the Sun, so if I put the Sun and the Earth 1 meter apart, the solar probe is 4 centimeter from the Sun. So that's close, डॉक्टर। ठीक है, अभी हम जो है बहुत नज़दीक गए हैं सन के, और अभी तक का मुझे नहीं लगता कोई सैटेलाइट उधर गया रहेगा इतनी नज़दीक। अच्छा ये क्या है देखते हैं अभी। Parker Solar Probe, which was launched into was developed as part of NASA's Living with a Star program to explore aspects to the Sun-Earth system that directly affect life and society on Earth. तो हमें क्या करना है, मतलब नासा ने क्या किया, सोचा 2018 में कि हमें एक ऐसा सैटेलाइट बनाना है जो जाके हमारा जो सन है उसको थोड़ा एक्सप्लोर करे, कि भाई ये जो स्टार है हमारा, ये सच में डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है हमारी लाइफ और सोसाइटी पे पूरा। तो उसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं ज़्यादा, तो इसके रिगार्डिंग हमें थोड़ा जानना पड़ेगा। हम इतना स्टार के साथ रह रहे, पर हमें अभी तक सन के बारे में इतना कुछ नहीं पता है। इसलिए नासा ने ये पार्कर सोलर प्रोब बनाया। प्रोब विच इज द साइज ऑफ अ स्मॉल कार, एक कार की इतना ही है, 4 इंस्ट्रूमेंट ही सूट है इसमें, एंड इज डिजाइन टू मेक ऑब्जर्वेशन ऑफ द सन्स अपर एटमॉस्फेयर नोन एज कोरोना। देखो, आपको सन के रिगार्डिंग मैंने बताया था क्या? चलो कोई नहीं, ये सन है, इधर एक फ्लेयर है, और इधर एक लेयर है ऊपर की एक, ठीक है। ये जो लेयर है इसी को बोला था कोरोना, और इधर सबसे ज्यादा टेम्परेचर 1.5 मिलियन डिग्री सेल्सियस है कुछ तो, और इधर का जो है उससे कम है। तो ये शॉकिंग बात है हमारे लिए कि भाई इधर टेम्परेचर कम है, सरफेस वाला, और इधर कितना क्यों ज़्यादा है, और कोर का उससे भी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये एकदम मिस्ट्री हो गया भाई, ये कैसे बात होगी। अगर कोई हॉट बॉडी है, अगर उसके आप बाहर देखेंगे तो अपना टेम्परेचर रहेगा वो कम रहेगा ना, ऑब्वियस ही बात है। अगर इधर रहेगा तो ज़्यादा ही रहेगा, पर ये उल्टा हो रहा है। It also makes critical contributions to forecasting changes in the space environment that affect life and technology on Earth. Over the years, probe has completed 21 orbits around the sun, gradually moving closer to our star. तो हमने अभी तक 21 ऑर्बिट बनाए हैं उसके, 21 बार घुमा है उसके आजू बाजू। अभी आप बोलो कि भाई इतना मिलियन डिग्री सेल्सियस रहता है तो ये जल के राख क्यों नहीं हुआ? इतना क्लोजेस्ट अभी तक एनी ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट अभी तक तो नहीं गया, और इसकी स्पीड देखो कितनी है, 6,92,000 किलोमीटर एक घंटे में। मतलब ये एक घंटे में हमारी पृथ्वी के ऑलमोस्ट 10-15 चक्कर काटेगा, एक घंटे की बात कर रहा हूँ। इट एंड्योर टेम्परेचर अप टू 1377 डिग्री सेल्सियस व्हेन इट रीच द क्लोजेस्ट पॉइंट टू द सन ऑन December 2024। मतलब 1400 डिग्री सेल्सियस तक इसने झेला है अभी तक। द प्रोब वेंट आउट ऑफ कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग दिस टाइम, बट द साइंटिस्ट ऑपरेटिंग इट रिसीव्ड द सिग्नल अगेन ऑन द नाइट। The craft was able to survive such high temperatures because it is protected by 4.5 inch 11.3 कार्बन कंपोजिट शील्ड। तो 4.5 इंच का एक बस एक थिक कार्बन कंपोजिट शील्ड है जो इतना सर्वाइव कर पा रहे हैं हम इतना डिग्री सेल्सियस। द स्पेस क्राफ्ट इज आउटफिटेड विद अ कटिंग एज हीट शील्ड मेड अप ऑफ कार्बन composite foam with sandwich between two carbon plates. The heat shield is so good at its job that even though the front side of the wheel receives full brunt of the sun's intense light, reaching 2.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब 1370 डिग्री सेल्सियस, दिस इंस्ट्रूमेंट बिहाइंड इट इन इट्स शैडो विल रिमेन एज अ कोजी 85 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब इन्होंने क्या किया, ये दिख रहा है क्या आपको? ये जो है एक शील्ड का तरह काम करेगा, ये जो है पूरा फेस करेगा,
और इसका पीछे का जो टेम्परेचर है ना वो बहुत ठंडा रहेगा कंपेयर टू ये। अगर ये 1300 है तो ये 80 90 या फिर 100 तक पकड़ लीजिए, 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा। इतना डिफरेंस आता है सीधा। देखो 2500, 1370, अभी 2500 किधर और 85 किधर, देख रहे हो? ऑलमोस्ट 4 टाइम्स है ये, 40 टाइम्स, सॉरी 40 टाइम्स है, ऑलमोस्ट 30 टाइम्स। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर भी समझ रहे हो कितना कितना ठंडा रख रहा है ये, मतलब 30 डिग्री सेल्सियस तक यार अपना रूम टेम्परेचर हो गया। The probe circulates a single gallon of water through its solar panels, which helps it cool. The water absorbs the heat and then radiates it out into outer space. तो इधर एक पानी का भी मैकेनिज्म किया है उन्होंने कि भाई वो गर्म होगा, भाप बन जाएगी और स्पेस में डाल जाएगा। What is the significance of these milestones? Scientists are hoping that as the probe passed through the sun's outer atmosphere, it would have collected data that can give clues about some long-standing questions. For instance, researchers expect to solve the mystery around why the corona is hot. वही बात है, टेम्परेचर legally reach 1 million to 2 million डिग्री सेल्सियस। अभी वो एक प्रॉब्लम मैंने जैसे बताया कि कोरोना का टेम्परेचर इतना क्यों ज्यादा है भाई, 1 से 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक रहता है और बाकी का जो अंदर का जो एरिया है तो उसमें ज्यादा नहीं रहता है। तो वो एक मिस्ट्री सॉल्व करने में मदद करेगा हमें। द डाटा could also give an idea about the origins of solar winds, a continuous flow of material escaping the sun. A better understanding of solar wind is crucial as it affects not only space environment but also life on earth। देखो सोलर विंड जो है ना वो हवा रहती है, मतलब सन की हवा, समझ रहे हो? फिर क्या क्या रहेगा, वो सोलर स्टॉर्म भी रहता है, सोलर विंड्स भी रहता है, और एक भी है, मैं गेस मैं भूल रहा हूँ वो, और एक कुछ तो था, पर ठीक है। सोलर winds are usually deflected by Earth's magnetic field, which acts like a protective shield. Sometimes particles interact with atoms and molecules in the atmosphere to produce the phenomena of the northern and southern lights। देखो आपने नॉर्दर्न लाइट्स देखा रहेगा, ये अपना अरोरा, ब्लूइश वगैरह ऐसा मस्त स्काई में रहता है, स्पेशली नॉर्वे के इधर मिलते रहते हैं। देखो ये अर्थ है हमारी, चलो इधर दिखाता हूँ, ये अर्थ है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है। जब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आता है ना ये सोलर स्टॉर्म, तो ये हिट होता है और मैग्नेटिक फील्ड तोड़ने की कोशिश करता है, पर ये जो सोलर स्टॉर्म है ना ये इधर सैचुरेट होता है, ये पूरा इधर डिफ्लेक्ट किया जाता है। ये हमारा प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करता है मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे ही इधर जाता है तो ये जो नॉर्थ और साउथ में हमें अरोरा देखने मिलता है, क्योंकि वो अलग अलग वो आपने देखा रहेगा शायद अरोरा का, आप एक बार सर्च करिएगा, मस्त दिखता है। सोलर स्ट्रॉन्ग सोलर विंड कैन डिस्टर्ब पावर ग्रिड, सैटेलाइट्स एंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट। अगर और जोर से आ गया सोलर विंड तो खत्म हो गया, फिर पावर ग्रिड खत्म हो गए, सैटेलाइट गए, क्योंकि जो आयंस रहते हैं ना वो सीधा खत्म कर देंगे सैटेलाइट्स को, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। The measurements from the Parker Solar Probe will help us to answer some of the most fundamental questions about how the sun and its extended atmosphere behave that we have had since the very beginning of the space age। मतलब वही क्वेश्चन है कि भाई सन ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, एकदम स्टार्टिंग से बिहेव कर रहा है कि अभी हो रहा है ये। The probe is expected to send back detailed telemetry data on its status on January 1 according to the statement by NASA। तो 1 जनवरी नए साल पर देखते हैं ये क्या करेगा। अगर अच्छी बात है किया तो अच्छी बात है, कुछ ना कुछ तो डाटा भेज ही देगा। माइग्रेंट्स और यूएस, चलिए देख लिया है हमने मोटा मोटा तौर पर, तो क्या था। स्टॉक मार्केट छोड़ दीजिए, ट्रम्प का बहुत चल रहा है, जिगजैग भी छोड़ दीजिए। बुक्स प्रोवाइडेड शेल्टर देवर अलाइनमेंट रीजन फॉर होप, ना थोड़ा इसमें जा रहा है, लिटरेचर टाइप में जा रहा है। ब्रेकिंग थ्रू जेंटली एज प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह क्वाइटली नेविगेटेड द पुल्स एंड प्रेशर डाइवर्स कलेक्शन, नहीं पॉलिटिकल जा रहा है। चलिए मेजर मेजर तो हमने किया है। द क्राइसिस ऑफ हिस्ट्री एट अ टाइम व्हेन द डिसिप्लिन इज बिलेगर्ड, हु गेट्स टू स्पीक फॉर इंडियाज पास्ट। चलिए और बाकी की न्यूज़ देखते हैं। अभी बीपीएससी के प्रोटेस्ट चल रहे हैं कि भाई उन्होंने बहुत ज़्यादा लीकेज हो गया है। प्रॉब्लम यह हो रहा है कि पेपर लीक हो गया है और फिर भी एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं कि भाई फिर से एग्ज़ाम कंडक्ट करने की ज़रूरत है। इवन खान सर भी इसमें बोल रहे थे कि ये बहुत गलत हुआ है। डिफेंस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम 2000 करोड़ टू 21,000 करोड़ इन अ डिकेड, राजनाथ। सेंटर नॉट टू रिलीज 2023 गुड गवर्नेंस इंडेक्स, विल फोकस ऑन 2025। अच्छा, गुड गवर्नेंस 2020 का आप भी नहीं निकालने वाले, अच्छी बात है। विथ 9931 करोड़ आइडिया रिचेस सीएम ममता पूरेस्ट विथ 15 लाख। अच्छा 15 लाख में ये हो जाएगा, सही है। वाई मल्टीपल सीजर्स ऑफ कार्डियक स्टिमुलेंट नेफेंट्रिन सल्फेट कॉज फॉर कंसर्न, ठीक है। एकता नगरी ऑफ सिंह रोड इन पुणे, सिंहगढ़ रोड इन पुणे, क्या हो गया? पूरा पुणे के दिख रहा है ईयर का पिक्चर्स, देखो या पोर्च का इंसिडेंट हुआ इधर।
कातरज लेक ड्राई होने लग गया। खड़े लेक, पुणे सिटी, सिंहगढ़ फोर्ट देखो क्या भारी दिख रहा है नज़ारा। सिंहगढ़ से बहुत सही नज़ारा दिखता है बाय द वे। अगर आपने सिंहगढ़ फोर्ट देखा नहीं है ना, आप हाइक करके जाइएगा, मज़ा आता है। पैर अलग से दुखेंगे वो अलग बात है, पर काफ़ी सही है। 10,000 कॉप्स डिप्लॉयड फॉर बैटल ऑफ कोरेगांव भीमा यूनिवर्सरी इवेंट। ORS 5 नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, what does it have for Pune city? फर्स्ट कमर्शियल एयरक्राफ्ट टू लैंड एट नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो पहला कमर्शियल एयरक्राफ्ट लैंड हो गया इंडिगो का। अरे फिर से रिपीट हो रहा है क्या? ये इसकी वजह से रिपीट हुआ है। चलो कोई नहीं। quadruped quadrupedal robotic mules to फीचर इन आर्मी डे परेड। देखो रोबोट्स ऐसे आने वाले हैं अभी तो। मतलब जो डॉगी को इतना ट्रेन किया जाता है ना, उनके ऊपर का जो लोड तो एटलीस्ट कम हो जाएगा। रोबोटिक अगर डॉग आ गए फिर तो बेस्ट ही है। हमने PSL भी, हाँ, C60 भी लॉन्च किया है। पेडेक्स, सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। वही वही बोल रहे थे, इलॉन मस्क। ठीक है, मोटा मोटा तौर पर तो हमने किया है। उम्मीद है आपको पसंद आया रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद।